हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज अचीवमेंट मोटिवेशन। द टर्म achievement motivation may be defined by independently considering the words achievement and motivation. Achievement refers to competence, a condition or quality of effectiveness, ability, sufficiency, or success. Motivation refers to the energization and direction of behavior. Thus, achievement motivation may be defined as the energization and direction of competence relevant behavior, or why and how people strive toward competence and away from incompetence failure. In the rest of this article, we will explore the definition, types, and characteristics of achievement motivation. So, I will explain to you what is achievement motivation. ओके जब भी हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट हमारी क्या है? वो कंडीशंस जो क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे टास्क है, हमारे गोल्स है। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन मींस डायरेक्शन। ओके जब आपको मालूम होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप चाहते क्या हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन को अगर हम साथ में डिफाइन करते हैं, ठीक है, टुगेदर डिफाइन करते हैं, तो ये आपके क्या है, आपको दिशा बताती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, किस तरीके से अपने गोल्स को सक्सेस पा सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी जो है फेलियर नहीं हो सकते। सो some definitions given by authors. First, Gupta, 1993, achievement motivation concentration primarily upon achievement related behavior. Behavior in which there is a competition with a standard of excellence. Next definition was given by Atkinson, 1964, defined achievement motivation as a tendency to endeavor for the attainment of a goal. A specific motive is concerned with attainment of specific type of goal. Next definition is given by Hill, 2001. Achievement motivation concerns with the desire to do well, succeed and reach standards in one's own eyes and the eyes of others, and reflects the willingness to persist in behavior that enables higher standards to be reached despite the possibility of failure. Next definition was given by McLean, Atkinson, Clark, and Lowell. 1953. Achievement motivation is effect in connection with evaluated performance in which competition with the standard of excellence was paramount. Next, types. Achievement motivation can be characterized into two primary types, that is intrinsic achievement motivation and extrinsic achievement motivation. So let's discuss first types of achievement motivation, that is intrinsic achievement motivation. Intrinsic achievement motivation defined as the internal drive to accomplish tasks or engage in activities based on personal enjoyment or interest is rooted in the satisfaction derived from the task itself rather than external rewards. देखो, इंट्रिंसिक अचीवमेंट मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरीके का मोटिवेशन होता है जो कि हमें मालूम होता है कि हमारा टास्क क्या है, ठीक है, हम जानते होते हैं, लेकिन उसमें क्या करना चाहते हैं, हम इंजॉयमेंट भी करना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये टास्क जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका एक्सटर्नल रिवॉर्ड ही हो, वो जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज में ट्रॉफी या फिर कुछ ना कुछ मिले ही, उसके बदले आपको जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिले, ठीक है, लेकिन ये आपके वो टास्क है जो कि आप क्या करते हो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करते हो। Next, characteristics, internal satisfaction. Intrinsic motivation is characterized by the internal satisfaction individuals find within the activity or task, emphasizing the enjoyment of the process. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो आपकी क्या कर रहा है, आपको बता रहा है इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन कि आप इंडिविजुअली, ठीक है, आप खुद से यानी कि सेल्फ से आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटी को और टास्क को इंजॉय करके जो है वर्क कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। Individuals are motivated by genuine interest in the task or a sense of enjoyment derived from the activity, reflecting the intrinsic nature of their motivation. अगर आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो तो आप अपने इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट के बेस पर अपने वर्क को, अपनी एक्टिविटी को, अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं।
Next one is autonomy. Intrinsic motivation often involves autonomy and self-direction as individuals willingly choose to engage in activity. अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, कोई भी टास्क हो रहा है, उसमें आप चाहते हो कि इंडिविजुअल बेसिस पे अपना रोल प्ले करना, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने डायरेक्शन जो है, सेल्फ डायरेक्शन जो है, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है। पर्सनल accomplishment. The focus of intrinsic motivation is on achieving personal goals and standards of excellence for the sake of self-fulfillment and accomplishment. जब से अगर आपको मालूम है कि आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, किस तरीके से अपने आप को आपने ढालना है, ठीक है, कि सेल्फ फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी। Next one is extrinsic achievement motivation. Extrinsic achievement motivation involves the pursuit of tasks or goals based on external factors or rewards, such as recognition, grades, money, or social approval, rather than intrinsic satisfaction. Extrinsic achievement motivation, that means external rewards, ठीक है, जो कि आप सोसाइटी के उससे चीजें सीखते हो, ठीक है, पीयर ग्रुप हो गया आपका, आपके सोसाइटी नेबरहुड हो गया, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कैलीग्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपने गोल्स को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, किस तरह के डायरेक्शन में जो है आपको जाकर आगे बढ़ना चाहिए। Next one is that is characteristics. External rewards. Extrinsic motivation is characterized by the pursuit of tangible rewards, emphasizing grades, money, or social recognition as external motivators. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आपके वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्या मिलता है, जैसे प्राइज हो गया, प्राइज में हो सकता है आपको पैसा मिले, या सोशल रिलेशंस बिल्डअप हो आपके, ठीक है, आपको ग्रेड सिस्टम मिले, तो दैट इज एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ये ऐसे रिवॉर्ड्स है जिन्हें आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। Next one is social comparison. Individuals may be motivated extrinsically by a desire to outperform others, emphasizing success in competition and social recognition. सोसाइटी में कंपैरिजन कैसे करोगे, जब आपको खुद को मालूम होगा कि आप चाहते हैं कि आपकी डिजायर्स क्या है, तभी तो आप सोशल कंपैरिजन कर पाओगे ना। नेक्स्ट वन इज कॉशियन एंड थ्रेट. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू कॉशियन और द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, पुशिंग इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है। काफी बार क्या है कि हमें बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि कोई पनिशमेंट मिलेगी हमें, ठीक है, आपको नहीं मालूम कि आपको किस दिशा में जाना है, कैसे अपने टास्क को अचीव करोगे, तो हमें क्या मिलता है, पुशअप मिलता है, ठीक है, तो वो पुशअप जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉशन एंड थ्रेट। काफी बार क्या है, हमें डर भी है और लेकिन बट चीजों को करना भी है। नेक्स्ट वन इज ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट. Research indicates that excessive external rewards may lead to a reduction in intrinsic motivation, known as the over-justification effect. जरूरी नहीं है कि आप इंट्रिंसिक एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स से ही क्योंकि बिकॉज हम एक्सटर्नल अचीवमेंट मोटिवेशन कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या करना है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जो हमें मिलेंगे, ठीक है, उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है, ठीक है, यानी कि आपका इंटरनल इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट दैट मीन्स काफी बार क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, टास्क को अचीव करने के लिए, जो हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है या हम इंजॉयमेंट से जो काम कर रहे होते हैं, हम उसे क्या करते करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। Characteristics of achievement motivation. First point is goal oriented. Individuals with high achievement motivation set clear and challenging goals for themselves. These goals provide direction and purpose, serving as a source of motivation and focus. Achievers often have a strong desire to outperform previous accomplishment and meet or exceed their own expectations. Whenever you know that आपको आप चाहते क्या हो इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ठीक है, आपका फोकस पॉइंट क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वो कैसे अचीव होंगी, जब आपका खुद का क्या होगा, गोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज
Persistence. Achievers are persistent in the face of obstacles and setbacks. They are not easily discouraged by failures or challenges, but rather view them as opportunity to learn and improve. This persistence is crucial for overcoming difficulties and staying committed to long-term objectives. Persistence means ऐसा फेस, ऐसा बैकअप, ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, काफी बार जब आप फेल होने लगते हो या फिर चैलेंजेस आते हैं या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, तो आप उसको क्या करते हो, टैकल करते हो, ठीक है, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप क्या कर सको, अचीव कर सको. Intrinsic motivation. Achievement oriented individuals are often driven by internal factors such as personal satisfaction, a sense of accomplishment, or the love for the task itself. While external rewards may be recognized, the internal satisfaction derived from achieving goal is a powerful motivator. Intrinsic motivation में हमने एक्सप्लेन किया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो फैक्टर्स है जो कि आपको क्या करता है कि आपको सेल्फ लव सिखाता है, आपको टास्क से लव सिखाता है. एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स भी मैं आपको इसमें मिलते हैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन में, ताकि आप अपने गोल्स के लिए मोटिवेट हो सको. नेक्स्ट पॉइंट इज हाई स्टैंडर्ड्स. Individuals with strong achievement motivation set high standards for themselves. They constantly seek improvement and are not satisfied with mediocre performance. These strive for excellence encourages them to invest time and effort into mastering their skills and refining their ability. हाई स्टैंडर्ड्स भी आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, या आप अगर अभी लोअर क्लास को वर्कर हो तो आप चाहते हो कि एज अ सुपरवाइजर जो है आप वर्क करो, तो वो कब होगा, जब आपका स्टैंडर्ड जो है वो हाई होगा, आपकी स्किल्स जो है क्या होगी, हाई होएगी, तभी आप क्या कर पाओगे, खुद को आगे बढ़ा पाओगे. नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग. A healthy level of risk taking is often associated with achievement motivation. Individuals who are motivated to achieve are willing to take calculated risks to pursue their goals. They understand that stepping out of their comfort zone can lead to valuable learning experience and personal growth. रिस्क टेकिंग क्या होता है, काफी बार हम इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन में कि हमें नहीं मालूम होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, किस तरीके से जो रिस्क को है वो कैलकुलेट किया जाए, हमारे गोल्स को जो है हम अच्छे से अचीव कर सके. तो वो हमारा क्या करता है, एक्सपीरियंस जो है या पर्सनल ग्रोथ जो है वो हमें बताती है कि हमें रिस्क लेना है या नहीं लेना. नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन. अचीवर्स एग्जिबिट अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, managing their time and resources effectively to work toward their goals. They can resist distractions and maintain a focus on tasks, understanding the importance of consistency and dedication in the pursuit of success. Self discipline means बेसिकली कि आपको अपने वर्क को इफेक्टिव कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे आपका जो गोल्स हैं वो आपको अचीव करने हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको चीजों को समझना होगा, ताकि आप अगर आपको टास्क मालूम होंगे तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है, और सक्सेस जो है वो लाइफ में अचीव कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक सीकिंग. अचीवमेंट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स एक्टिवली सीक फीडबैक on their performance. They view feedback as a tool for improvement rather than criticism, and they use it to make necessary adjustments and enhance their skills. अगर आपको पता चल जाए फीडबैक सीखिए, आपको मालूम है आपको की गलती कहाँ पर है आपकी, ठीक है, और आप उसको वहीं पे जो है फीडबैक परफॉर्मेंस लेवल पे आपको बता दी जाए, तो क्या आप चीजें जो है एडजस्टमेंट करने की कोशिश करोगे, अपनी स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, वो कब करोगे, जब आपको जो है फीडबैक मिलेगा, ठीक है. जैसे हमारे कम्युनिकेशन में होता है कि कम्युनिकेशन क्या है, हमारा टू वे प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी वन पर्सन जो है वो सेंडर है, सेकंड वन इज रिसीवर, ओके, तो हम अपनी स्किल्स को इनहेंस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंचा है, वो तो हमें तभी पता चलता है जब हमें फीडबैक मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिवनेस.
While not always true for every individual with achievement motivation, competitiveness is often a common trait. The desire to outperform others or oneself can fuel the drive to succeed and push individuals to continuously improve. Competitiveness, भाई अगर हम बात करें कि अचीवमेंट मोटिवेशन हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो टास्क है वो हमारे पूरे हो जाए। वो कब होंगे? जब आप अपने आप में जो है चेंजेस लेकर आओगे। ठीक है, आप देखोगे कि आपको किस तरीके से अपने आप को क्या करना है, पुश करना है, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको।